آپ کی جو کئی نظمیں جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا وہ بڑی پاپولر ہوئی ہیں، بڑی ہاں جی۔ ان کو سوشل میڈیا پہ بڑا سراہا گیا ہے، تو کیا ان کی کوئی رائلٹی جو ہے وہ شاعر کو ملتی ہے؟ اچھا پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یار میں نے پیسے نہیں لینے، میرے شعر بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ میرے اپنے شعر ہیں، میری اپنی فیلنگز ہیں، میں نے یہ احساسات کسی کو دیکھ کے نقل نہیں کیے۔ آپ کی ایک مشہور نظم جو ہے دل روندہ ہے، جی، یہ بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیجیے۔ یہ بھی رمضان جانی نے اتفاق سے اسی نے گائی ہے، بلکہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ اسی سے وائرل ہوا تھا، اسی نظم سے نا۔ کتے دور سمندروں پار کوئی جدو گیت ہجر تے چھوندا ہے، دل روندا تے کرلاندا ہے، سکھ نفل نمازاں منتاں سو تیرے ملن نو ہاڑے پاندا ہے، جدوں ہولا ہو کے ککھاں تو چھڈ اپنی راج دہانی نو کوئی رانجھا تخت ہزارے دا پو ماغ دی ٹھردیاں راتاں چے کتے اجڑی پجڑی جوہاں چے نت ہیر سیال دے درشن لئی بن جوگی تھاں تھاں پوندا ہے۔ اچھا سر، آپ کی کئی نظمیں جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں، کافی پاپولر ہیں، جس طرح اسد دل نو مرشد جان لیا، اس کے بعد جو ہے دل روندا ہے تے کر لاندا ہے، جی، تو اب آپ ہمیں کون سی نظم سنا رہے ہیں؟ اچھا یہ چونکہ تھوڑی سی طویل نظمیں ہیں اچھا، اور آپ نے ان کا ذکر کیا تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، تو وہ سارے لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سن بھی رکھی ہوگی۔ رمضان جانی سٹار بچے آج کل، تو میری پہلی نظم دل روندہ ہے، یہ بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ رمضان جانی کا تعلق چشتیوں سے ہے، اور رمضان باوجود اس کے کہ بہت اچھا گاتا تھا، لیکن اس سے پہلے رمضان کی شناخت ایک اپنے علاقے تک محدود تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فیم اس کو ملی، ساری دنیا میں اس کی ایک شناخت ہوئی، یہ نظم ریکارڈ وائرل ہوئی، دل روندہ ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر جانی نے یہ بھی ساتھ ہی کچھ عرصے کے بعد ہی میرا خیال ہے یہ گا دی تھی اساں دل نو مرشد جان لیا، اور اللہ نے بڑی کم عمری میں انہیں شہرت دے دی ہے۔ نیک نیستی اس کے ساتھ ہے، ایک تو نیک نیستی ہے، دوسرا وہ محنت بڑی کرتا ہے ماشاء اللہ سے نا، اس نے بڑی مار کھائی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی والدہ بھی نہیں ہے، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، اور والد نے بھی اس کا بڑا ساتھ دیا، لیکن جب اس پر وقت آیا کہ وہ اپنے والد کی خدمت کر سکتا تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایون یہ اپنے استاد کو بھی بڑا اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، جن سے اس نے سیکھا ہے، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یعنی آپ وہ ہم بچپن سے ہم ایک فقرہ محاورہ سنتے رہے ہیں کہ جو با ادب ہے وہ با نصیب۔ ہاں، بادب با نصیب، ہاں جی۔ تو اچھا کچھ چیزوں کے نا روحانی فائدے ملتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، ہم لوگ آج کل جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہاں تو 2 + 2 4 کرنے والے لوگ ہیں نا، تو لیکن ہم لوگوں نے بچپن میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، اپنے استادوں کو جس کو کہتے ہیں نا جوتیاں سیدھا کرنا، ٹھیک ہے، اس کے فائدے ملتے ہیں، بڑوں کا ادب احترام کرنا، پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، اس کے فائدے ملتے ہیں۔ اس کو شاید فوری طور پر جج نہیں کیا جا سکتا کہ یار جی کیسے، سمجھایا نہیں جا سکتا کیسے، لیکن جب آپ ڈیفینیٹ ملتے ہیں، 100% ملتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی سر، نظم سنا دیں۔ ساریاں فکراں سارے رولے سارے مسئلے بال دواں، واہ، ساریاں فکراں سارے سارے رولے سارے مسئلے بال دواں، وس نہیں چلدا میرا نہیں تے وقت دی گردش ٹال دواں، اور قسمے میرا وس جے چلے دھرتی دے سب لوکاں نوں غم دے ایک ایک پل دے بدلے خوشیاں 100 سال دواں۔ واہ واہ واہ، یہ 2 شعر تھے، ہاں جی۔ 4 دناں وچ شوق پرانا پੈ جاوے، 4 دناں وچ شوق پرانا پہ جاوے، شوق پرانا پہ جاوے، یہ جو اصل میں سفر ہے نا، زندگی کا سفر بھی یہ تسلسل مانگتا ہے نا، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی جلدی کوئی ایک کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی، تو تھوڑے عرصے میں بور ہو کے نا تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو وسیع تر تناظر میں لے لیں کہ 4 دنوں میں شوق پرانا پہ جاوے، جے کر کیتا کول ہنڈانا پہ جاوے، اور پیار دے پینڈے پین تو پہلا سوچ لویں، پیار دے پینڈے پین تو پہلا سوچ لویں، ہو سکتا ہے پیار نبھانا پہ جاوے، واہ، ہے نا۔ اچھا آپ کے لیے اس شعر کو میں تھوڑا سا چینج کر دوں،
हाँ जी जी ज़रूर। ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। वाह। अच्छा सर, आपकी जो कई नज़में जिस तरह आपने अभी तस्करा भी किया वो बड़ी पॉपुलर हुई हैं, बड़ी हाँ जी। उनको सोशल मीडिया पे बड़ा सराहा गया है, तो क्या इनकी कोई रॉयल्टी जो है वो शायर को मिलती है? हाँ हाँ, ये जवाब है इसका। अच्छा। इसका ये जवाब है ना, हाँ हाँ, जवाब आपको नहीं समझ आया ना। पंजाबी का एक मुहावरा हम इस्तेमाल ठीक है। करते हैं, मैं आपको बताऊँ, जो हमारे देखने वाले होंगे उनमें बेशुमार लोग इन चीज़ों को समझते होंगे ना। ठीक हो गया। ठीक है ना, अच्छा सर, मुफ्त में, यानी कि ना। ठीक है। अच्छा, मैं पैसे लेता भी नहीं हूँ, इसकी मैं आपको वजह बताऊँ। जी जी। मेरी कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लेकिन हमसाया मुल्क के जो बड़े नामवर कुछ लोग हैं ना, गज़ल गाने वाले, उर्दू की कुछ चीज़ें उन लोगों ने भी गाई हैं। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि यार मैंने पैसे नहीं लेने। अच्छा। वजह शायद उसकी ये कि ये मेरे एहसासात है ना, मेरी फीलिंग्स है। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरे शेर बड़े हैं या छोटे हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरे शेर खालस मेरे हैं, मेरे अपने शेर हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। मैंने ये एहसासात किसी को देख के नकल नहीं किए। ठीक है। कि मैं इस वजह से एक शेर बनाऊँ कि यार मुशायरे में ये मजमून बड़ा हिट जाएगा। नहीं, जो मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, उनको मैं शेरों में डालता हूँ। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़, मैं शेर का इंतज़ार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाऊँगा और शायरी के पीछे पड़ जाऊँ डंडा लेके, कि नहीं मैंने शेर लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। कुछ लोग इस पे कहते हैं नहीं आप कोशिश करें, आमद वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं कहता ठीक है। अच्छा सर, जो शायर है ज़ाहिर है ये उसकी एक तख्लीकी सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने उसे नवाजी है, और जो अगर इस सलाहियत को, यानी कि आप जो नज़्म है या शायरी है, इसको अगर कमर्शियल मकासद के लिए, बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जाए और इससे पैसे कमाए जाएँ, तो इसमें क्या हर्ज है कि इसमें से कुछ जो है वो शायर को भी दे दिया जाए? जिसकी ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ है ना। ठीक है। देखिए, अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई फ़िल्म लिखने का, फ़िल्म के अंदर गीत भी आएंगे, उसके लिए एक सिचुएशन है। ठीक है। ठीक है ना। मुमकिन है कि मैं उस सिचुएशन पे बहुत अच्छे गीत लिख सकूं। एक बहुत अच्छी कहानी जिसका मुझे ऑर्डर मिला है, वो थोड़ा सा उसको उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो मैं मुमकिन है बहुत अच्छी कहानी लिख सकूं। ठीक है ना। ठीक है। ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने रमज़ान से ये कहा था, रमज़ान इस किताब में से आप जो चीज़ गाना चाहो गाओ, मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है, कोई तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे माशरे में ये रुझान नहीं है कि जो जिसकी तख्लीक है या शायरी है या उसकी कोई राइटिंग्स हैं, और अगर उसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी प्रोजेक्ट में उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उससे पहले इजाज़त ली जाती है, परमिशन ली जाती है? क्या हमारे माशरे में ये रुझान अच्छा, है? थोड़ा सा है। अच्छा। अभी मुझे याद आ रहा है कि जब ये गीत वायरल हुआ था, दिल रोंदा है, तो मुझे फेसबुक पर एक मैसेज आता है कि जी आप इनबॉक्स में मेरे से रब्ता करें। फेसबुक पर एक कमेंट थे, उसमें ये था। मैं जब इनबॉक्स में गया, ठीक है, तो वहाँ पर उस बंदे ने फ़ोन नंबर दिया हुआ था। रब्ता हुआ तो उसने कहा जी ये गीत रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी कौन करना चाह रहा है, सिंगर का नाम बताइएगा। कहते जी बहुत पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर हैं, वो करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसके राइट्स ख़रीदने हैं। मैंने कहा दो चीज़ें हैं, शायर मैं हूँ, कंपोजिशन रमज़ान की है, कंपोजिशन के लिए आप उससे रब्ता करें। शायर मैं हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो बंदा गीत गाने जा रहा है मुझे उसका नाम पता हो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ। पहले तो उस बंदे ने अवॉइड किया, कहता जी 10% और 90% दो लोग हो सकते हैं। एक गालबन कराची के सिंगर हैं, कपाडिया उनके नाम के एंड पे आता, मेरे दिन से नाम उनका पूरी तरह से निकल गया। दूसरे सिंगर थे अली ज़फ़र। अच्छा। मुझे कहता जी अली ज़फ़र होंगे, 90% चांस है कि अली ज़फ़र गाएंगे। मैंने कहा अगर अली ज़फ़र गाएंगे तो मुझे कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं लेने, कोई पैसे नहीं मुझे लेने, लेकिन रमज़ान से अलबत्ता जो भी डील करनी है परमिशन जो है वो आप उनसे लें। ठीक हो गया। तो मुझे पता है कि बाद में रमज़ान की इन लोगों से बात हुई, तो रमज़ान ने कहा नहीं मैं मतलब मिल के गाऊँगा, मैं सोलो इसके राइट्स नहीं दूँगा। बाद में उसके बाद नहीं, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ मामलात हैं। ठीक है। अच्छा सर, आप अब अपनी कोई और नज़्म जो है वो हमें सुना दें। गुज़रे कल दा किस्सा बन के जी रहे हैं।
ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਹ। ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਲਿੱਸਾ ਕਹਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋ, ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਹ। ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਾ ਮੀਨ साई सादा आम। तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, कहते हैं यार इसको क्या पता है, इसको जो करे। लेकिन एक वज़हदारी जो हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने हमें सिखाई हुई है ना, उसका तकाजा ये होता है कि चलो यार ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी चाहिए। अगर अगला बंदा आपको ऐसा समझता है बेवकूफ़, जो आपने बात की है ना, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तुम पंजाबी में जितने अच्छे शेर कहते हो ना, तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं मिला। अच्छा। अब हक़ लेने के लिए भी ना एक और चीज़ भी है। आप भी रॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, ये भी बाकायदा एक जंग है, एक हुनर है, एक आर्ट है। शायद वो मेरे जैसे बंदे के लिए ना ठीक हो गया, मुश्किल काम है कि मैं वो जंग नहीं लड़ सकता ना। आपको पहली रो में आना है, अपने बारे में साबित करना है कि यार आप तो बड़ी शय हैं, बड़ी बला हैं, ये है वो है। बेशुमार लोगों ने, मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि मेरी ये 2 नज़में जो रमज़ान ने गाई हैं, एक पे कोई 12 लाख वीडियोस बनी है, एक पे कोई 1 मिलियन वीडियोस बनी है। तो लोग उसको सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये अबरार नदीम नामी किसी शख्स की है। इवन मैंने उस पर ये भी कमेंट्स पढ़े हैं कि ये सूफियाना कलाम है। कोई कहता है बाबा बुल्ले शाह का, कोई शाह हुसैन का, इस तरह से। अच्छा सर, ये जितनी आपकी नज़में जो मारूफ़ हुई हैं और मशहूर हुई हैं, इनमें से अगर कुछ शेर आप हमें सुना दें। 2-4 लाने हाँ हैं दोनों कि किते दूर समंदरों पार कोई जदू गीत हिजर दे छोंदा है, वाह। दिल रोंदा है। दिल रोंदा है। दिल रोंदा ते कुरलांदा है। सुख नफल नमाज़ां मनतां सौ, वाह। तेरे मिलन नूं हाड़े पांदा है। किते दूर समंदरों पार कोई जदों गीत हिजर दे छोंदा है, दिल रोंदा है। दिल रोंदा है। हाँ। अच्छा सर, अब तक आपकी तकरीबन 4 किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और 3 आपके शायरी मजमूए हैं। तो आप अपनी किताबों के बारे में बता दें, और हमारे वो नाजरीन जो आपकी किताबें ख़रीदना चाहें वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं, ये ख़रीद सकते हैं? वो ख़रीद नहीं सकते मेरी किताबें। अच्छा। इसलिए नहीं कि ये बड़ी कीमती हैं, इसलिए कि ये दस्तयाब नहीं है। दस्तियाब नहीं है। हमारे यहाँ पे आप ये देखिएगा कि रिवाज ये है कि शायर अपनी किताबें अपनी जेब से पैसे खर्च करके तो उसको शाया करवाता है। और आप रॉयल्टी की बात करें, हम लोग किताबें छाप के प्रिंट करवा के तो फिर दोस्तों में उसको तकसीम करते हैं, बांटते हैं। और दोस्त इतने ज़ालिम हैं वो किताब पढ़ते भी नहीं हैं। उफ। हाँ, पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो मार्केट में तो नहीं है। हर दफ़ा जब भी मेरी किताब कोई शाया हुई है तो मैंने ख़ुद से पैसे लगा के उसको शाया करवाया है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरा मजमूआ आया था कौन दिलां दियां जाने। ये पंजाबी का शेरी मजमूआ है। और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मिसरा है ना, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने। बिल्कुल। तो उसी से मैंने ये मिसरा लिया था। टाइटल इसका लिया कौन दिलां दियां जाने। इसमें पंजाबी गज़लें और नज़में हैं। तो इसकी तो शायद कभी किसी के पास कोई एक आधी कापी हो, वरना ये अब मार्केट में नहीं है। इसके बाद मेरा दूसरा शेरी मजमूआ उर्दू का था। ये भी नज़में और गज़लें हैं। अब भी फूल खिलते हैं। वाह, खूबसूरत। ठीक है ना, कि बारिशों के मौसम में दिल को गुदगुदाते हो, अब भी फूल खिलते हैं, अब भी याद आते हो। इसी का एक शेर है, तो उसी से मैंने ये इसका टाइटल लिया था। इसके बाद मेरा तीसरा शेरी मजमूआ छपा
असा दिल नू मुर्शद जान लिया। असा दिल नू मुर्शिद जान लिया। हाँ जी। वाह, ये भी रमज़ान ने गाई है और ये भी बड़ी वायरल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी कुछ अर्सा पहले मेरे कालमों का मजमूआ छपा चलते चलते, ये फ़काइया कालम है और फ़काइया मीन तंज़ो मज़ा है इसमें ना। ठीक है। नसर जब मैं लिखता हूँ या ऑनर जाता हूँ तो मेरा मजाज अक्सर चेंज हो जाता है ना। बल्कि मैंने असा दिल नू मुर्शद जान लिया का जो पेश लफ्ज़ लिखा है ना, उसमें मैंने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि कभी कभी मुझे इस तरह से लगता है कि मैं दरिया के दो किनारों की तरह से हूँ ना, कि एक साइड पे मेरे वो जो दुख हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं जिनका इजहार मैं शायरी में करता हूँ वो है, और दूसरी तरफ हंसी मजाक कह कहे दोस्तों के साथ शरारतें। तो वजह इसकी ये है कि वो मेरी कहानी है, वो मेरे एहसासात हैं जो मैं इर्द गिर्द या अपनी ज़ात के हवाले से देखता हूँ, सोचता हूँ, उनको महसूस करता हूँ, तो फिर उनको मैं शायरी में डाल देता हूँ। और ये मेरा मजाज है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। ठीक हो पता नहीं ये किसका शेर है, मुझे याद आ रहा है कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादस में, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। ठीक हो गया। तो मामला ये है कि मेरा ये जो हंसने वाला शौक़ और शरारती सा एक अंदाज़ है ना, ये अल्लाह ताला की भी बहुत बड़ी ठीक हो अनायत है मुझ पर। तो उसका इजहार मैं इसमें करता ठीक हूँ, हो कालमों में करता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, एक जिस तरह आपकी मारूफ जो नज़्म है असा दिल नू मुर्शिद मान लिया, और जान आपकी लिया। जो किताब का जो टाइटल है वो भी ये, तो इसमें से कुछ हमें सुना दीजिए। जी, असा दिल नू मुर्शद जान लिया, किसे मल्लिया पीर फकीरां नू, किसे लभ्या इत्थे हीरां नू, वाह। किसे रो रो सच्चे रब अगे लिया माफ़ करा तकसीरां नू, कोई नुकरे लग के बैठ रहा पा इश्क दियां जंजीरां नू, किसे सस्सी दा किसे होनी दा, कोई आशिक लैला सोहनी दा, वाह। कोई तालब चंगी शोहरत दा, कोई सज्जन बहुती दौलत दा, वाह। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਪੁੱਠੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਰਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਦਲੇ ਸੋਗ ਲਏ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮਰੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਫਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਯਾਰ ਗਏ ਇਤਵਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਰਲੇ ਕੰਡੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਸੱਜਣ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖੀ ਨਾ ਛਾਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਸਿਆਪਾ 100 ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਹੇ ਜੁੱਤੇ ਟੱਗੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ के वगते रहे। अच्छा, आपकी एक मशहूर नज़्म जो है दिल रोंदा है जी, ये भी हमारे नाजरीन को सुना दीजिए। जी, ये भी रमज़ान जानी ने इत्तफाक से उसी ने गाई है, बल्कि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो इसी से वायरल हुआ था, इसी नज़्म से ना, ठीक है। कि किते दूर समुंदरों पार कोई जदू गीत हिजर ते छुंदा है, दिल रोंदा है, दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, सुख नफल नमाज़ां मनदा 100, तेरे मिलन नूं हाड़े पांदा है, किते दूर समुंदरों पार कोई वाह। जदों गीत हिजर दे छुंदा है, दिल रोंदा है, दिल रोंदा ते कुरलांदा है, जदों हौला हो के कखां तो छड्ड अपनी राजधानी नूं, कोई रांझा तख्त हज़ारे दा, पो माग दी ठरदियां रातां 'च, किते उजड़ी पुजड़ी जूहां 'च, नित हीर सियाल दे दर्शन लई, बन जोगी ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, बहुत उम्दा। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ, ਲੱਜ ਲਾ ਕੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ 'ਚ, ਹਿਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੋਈ, ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਰ ਕੋਈ,
ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਰ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਡਾਰ ਕਿਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਹਿਜਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹਿਜਰਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਾਂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੁਖਦੀ ਧੂਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਚਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਾਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਹਿਜਰ ਦੇ ਛੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਤੇ कुरलांदा है। इब्रार नदीम साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया, वक्त दिया और आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। सलामत रहें। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।